Good morning, students. I am going to teach you about next topic of chapter 3 in ingredients of modern industry. I have also teach you about what is mining, what is minerals, and what is the importance for human being and what is importance for our country and economic development. Today, I teach you about types of mineral. How many types of mineral are found in the world, underground of the world? First, types of minerals. There are two types of mineral. First, metallic minerals and non-metallic minerals. Metallic minerals, iron ore, copper, bauxite, gold, silver, etc. And non-metallic minerals are found in our on the earth are coal, petroleum, potash, nitrate, etc. And you also, I teach you about classification of minerals. That according to classification of minerals are found in three grade. What? Metallic minerals and non-metallic minerals, mineral fuels. Metallic minerals have two types. First, metallic and non-metallic. Metallic minerals are those kind of minerals that have very hard and malleable. We can make different kind of parts of the machines and industry, and like copper, iron ore, gold, silver, bauxite, etc. Non-metallic minerals are those minerals have not metallic, like coal, petroleum, nitrate, etc. And it is very important for our industry, like electrical, engineering, and chemical industry. And metallic minerals are very important for our industry, like utensil, making machines, bridges, buildings, overfly, etc. And third kind of minerals are mineral fuels. You also know that mineral fuels is very important mineral for us and all the world. Like copper, I think, like natural gas, coal, and petroleum. Such minerals are known as first minerals are fuels. Mineral fuels. नेक्स्ट है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि मिनरल्स हमारे जीवन के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, मनुष्य के लिए, विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और मिनरल जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, जो हमारे लिए और देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक मिनरल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, खान पान में हमारा मिनरल की मात्रा होती है, और यदि नहीं होता है उसके लिए हम लोग को तो अलग से खाना पड़ता है। लेकिन मिनरल जो है इसके तीन भाग होते हैं, धात्विक, अधात्विक और फ्यूल। मेटलिक है जो धातु रूप में उसको ऐश पाए जाते हैं, और कारखानों में इसको कड़ा करके विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाई जाती हैं, जो मशीन है, अस्त्र शस्त्र के लिए भी है, पुल निर्माण के लिए, घर बनाने के लिए बहुत से बनाए जाते हैं। इसमें कॉपर है, बॉक्साइट है, आयरन ओर है, लीड है, ये सभी सिल्वर है, ये सब पाए जाते हैं। और एक है नॉन मेटलिक है, इसमें धातु नहीं होता है, इसमें इसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कोयला है, पेट्रोलियम है, नाइट्रेट है, पोटाशियम है। इस प्रकार के खनिज जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको नॉन मेटलिक कहते हैं। और नॉन मेटलिक, और इसमें है कि नॉन मेटलिक जो, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल. Ferrous minerals are those minerals have contain iron ore, like
मैग्नीज and manganese, iron ore, etc. And non-metallic, non-ferrous minerals do not contain iron ore, gold, सिल्वर, कॉपर, लीड, जिंक, etc. इसमें है फेरस और नॉन फेरस। फेरस हुआ है जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, जैसे आयरन ओर और मैग्नीज। और नॉन फेरस ओर हुआ है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। उसमें जिंक है, सल्फेट है, कॉपर है, लीड है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो फेरस मिनरल जो है हमारे मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंजीनियरिंग के लिए बहुत, इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और नॉन फेरस मेटेरियल मिनरल जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग और केमिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ओवरऑल minerals are very important for human being and for development of our country. So it is depend on mining. How can extract such kind of mineral inside of earth? सबसे ज़रूरी है कि खनिज तो है हमारे यहाँ पाई जाती है। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर पूरे प्रकृति ने पूरे खनिज को पर्याप्त मात्रा में दिया हुआ हो। किसी देश में ज़्यादा है, किसी में कम है, लेकिन बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत कम मात्रा खनिज की पाई जाती है, मिनरल की पाई जाती है, जिससे चलते हुए वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित है। जैसे अफ्रीकन कंटिनेंट है, वहाँ पर डायमंड, सोना, चांदी बहुत पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर आयरन ओर जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है। माइनिंग ऑफ मिनरल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट सच काइंड ऑफ मिनरल इनसाइड ऑफ द अर्थ? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइनिंग। फर्स्ट, ओपन कास्ट मिनरल, open cast mining, shaft mining, and offshore drilling. Open cast mineral are such kind of method of extraction of minerals under the earth. It is very easy to extract such kind of mineral. It is depend on the quality and quantity and economical point of view and accessibility. कहने का मतलब है खनन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और खनन के करने में हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है कि उसकी क्वांटिटी, खनिज की क्वांटिटी, क्वालिटी, गुण और गुणवत्ता उसमें क्या है, और हमारे खर्च जो हम उसको निकालने में जो खर्च लगता है वह वहन होगा कि नहीं, और दूसरा है कि हम उस जगह पर आसानी से पहुंच पाएंगे कि नहीं, हमारे पास तकनीक क्या है, ये सभी निर्भर करता है माइनिंग पर। इसमें 3 प्रकार के माइनिंग होते हैं। एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग, गड्ढा कोड़ करके पृथ्वी के अंदर जो खनिज है वो आसानी से निकाल लिया जाता है। और दूसरा है शाफ्ट ड्रिलिंग। शाफ्ट माइनिंग जो है वह शाफ्ट के द्वारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वक्राकार, क्षैतिजाकार मात्रा में उसको ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। वो बहुत गाढ़ा होता है, उसमें खनिज और को निकाला जाता है। दूसरा है ड्रिलिंग, ऑफशोर ड्रिलिंग में ऐसा है कि जहाँ समुद्र है, पानी बहुत मात्रा है, बहुत गहराई में है, और वहाँ पर उसको आसानी से, ये नहीं ओपन कास्ट सिस्टम है, साफ सिस्टम से नहीं निकल सकता है, तो उसको ड्रिलिंग किया जाता है मशीन से। बहुत गहराई में उसको ड्रिलिंग किया जाता है, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर गहराई में ड्रिलिंग करके उसको निकाला जाता है। तो उसमें 5 से बहुत से गहराई करके निकाला जाता है। इसे समुद्र में तेल, गैस को निकालने में इसको मदद होता है। ऐसे जगहों पर जहाँ पर हम लोग उसको माइनिंग नहीं कर सकते हैं, उसको हम निकालते हैं। इसमें ऑयल और नेचुरल गैस महत्वपूर्ण है।